यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम। तो आज का जो है क्या है, अनफोल्डमेंट, स्पिरिचुअल अनफोल्डमेंट। तो इसकी समरी करेंगे सुचरिता सेन। ओके जी सुचरिता करो। जी महाराज, हाँ। प्रणाम महाराज। प्रणाम महाराज। नमस्ते। Today's topic is spiritual unfoldment. This has been taken from Meditation and Spiritual Life by Swami Yatiswaranand Maharaj. Okay. Body, mind and spirit. Our true nature is divine, that is Brahman, is our true self. This true self is called the Atman, but in reality it is non-different from Brahman, the infinite spirit. Actually the ignorance, it covers this true nature. Through ignorance, we feel that we are separate from God and that we are only finite mortal beings. Self, through the ignorance, the true self becomes identified with the body, senses and mind, and there is created the ego. As a result, we feel we are only having gross, subtle and causal body. But beyond all these, there is the Atman, our true self. Further, we are caught in three states of consciousness daily. The waking state, the Jagrat Avastha, in which consciousness is identified with gross body and we are conscious of the gross world. The dream state, Swapnavastha, in which consciousness is identified with the subtle body and we live in a dream world created by our own mental impressions. The deep sleep state, the Sushupta Avastha, in which consciousness is identified with the causal body, which is in tune with the causal world, and the body and mind ceases to function in Sushupta Avastha. Now, men of knowledge tell us that beyond these three states, there is a state of transcendental consciousness which is called Surya, in which one regains one's pure spiritual nature. The attainment of this highest state of pure consciousness, when the soul realizes that it is nothing but the infinite spirit. The attainment of spiritual consciousness takes the form of a gradual unfoldment. There are various stages through which the aspirant passes before he attains the fullest illumination. It is this spiritual unfoldment that we are going to discuss now. In our conscious state, we are identified with the gross body. We then think we are short or tall, young or old, fair or dark, etc. When we identify ourselves with the mind, we experience pain or pleasure, misery or happiness, etc. When identified with the ego, we think I am the doer, I am bound or free. So we must get rid of our ignorance and realize our true spiritual nature. How to do this? We must break all old bad habits of thinking, feeling, and acting, and form good moral habits and guide our thoughts, emotions, and actions by the spiritual ideal. Then we become purer. As the mind becomes pure as a result of moral discipline, prayer, repetition of the divine name, and meditation, we develop the power of introspection. We then discover within ourselves various centers of consciousness. In contrast, each of these centers is called chakra. We all know how our thoughts, feelings, and activities change with the change of our mood. These moods have something to do with the center of consciousness, with which we may be connected at particular times. There are higher centers of spiritual awareness.
It is necessary for us to get a clear conception of the various centers of consciousness and their functions. The Sushumna, Ida, and the Pingala, and the chakra or center of consciousness. Now, Kundalini is also called as serpent power or spiritual power. It is latent in man. It is likened to coiled up snake lying asleep at the base of the spine. The Kundalini power flows through the spiritual channel called Sushumna. According to yogis, there are three nerves in the spinal column. They are Ida, Pingala, and Sushumna. Sushumna is in the center, and Ida is on the left side of Sushumna, and Pingala is on the right side of Sushumna. Three channels having their junction at the base of the spinal column on the lowest center, that is Muladhara. Sushumna is the spiritual channel, while the other two are connected with man's ordinary physical and psychical life. In an average man, the energy that gathers at the junction of the channel flow only through two sides, one and but not through the central channel. So all energy is side-tracked and expresses itself in ordinary worldly thought, feeling, and activities. Along the Sushumna are the six centers or lotuses. The lowest is Muladhara at the base of the spinal column. Then comes successively Swadhisthana, Manipur, Anahat, Vishuddha, and Agyata. The seventh center is the Sahasrara at the brain. The Kundalini, when it is awakened, it passes through the lower three centers and comes to the Anahat, which is at the heart. And which is at the heart, and then each center is a point of contact between the individual and the cosmic on a particular plane of consciousness. The first three centers from the bottom up, that is Muladhara, Swadhisthana, and Manipur, they are connected with the animal life of man, like eating, drinking, sense enjoyment, and sex pleasures. Man's first spiritual awakening comes when his consciousness rises to the center in the heart. It is there that he discovers his soul. Now there are unconscious and subconscious layer of our mind. Many of our deep-rooted desires and passions lie in the unconscious. The superconscious is the plane of spiritual experience and belief. The causal, subtle, and gross bodies have several points of contact. These points are the chakras. They are lying along the region of the spine between the head and the base of the spine. The spirit, mind, and body meet at these junctions and influence one another. Information constantly passes between all these three bodies through these chakras. There are three separate states of being in every one of us: tamas, rajas, and sattva, as already mentioned. Tamas is the state of laziness and sense gratification without struggling for higher life. The state of rajas is the life of struggle between lower and higher nature. Tamas and rajas are associated with the lower chakras or centers. The higher center are associated with sattva. In sattva, the higher nature or consciousness has gained ascendancy, but the evil has not yet been transmuted. Seeds of evil growth lie in the unconscious. They cannot dug out and thrown away, but they can be burnt away with the light of spiritual experience. Sushumna becomes active when we are in the state of sattva. The psychic forces working in the personality must become harmonious. So, it needs tremendous willpower and discipline to rise the Kundalini. So, to begin with,
we are asked to concentrate the mind on an image of Lord in the heart center. Through the devotion to the Lord, we try to concentrate the mind at the heart. All forms of sensory indulgence of energy are checked and the heart becomes the center of our consciousness. When we do all this through the grace of Lord, the Kundalini awakens. At first, we begin with imagination about the lotus, the light, or the form of deity, etc. But when our spiritual consciousness awakens, we realize the truth behind this imagination. As long as the seeds of desire, the latent impression of past experience remain in the mind, spiritual experience can never be continuous. At first, we can get only certain glimpses, but every little ray of light burns up some of the latent impressions. The highest degree of spiritual consciousness is called nirvikal samadhi. It can be attained only when most of the seeds of desire have been destroyed. To seek the reality behind the phenomena is the goal of religion. We have to awaken this power, the power to know the reality that lies dormant in us, and so we have to awaken this power. At every chakra, we get a new experience. We realize a new aspect of reality. When the heart center awakens, one realizes oneself as a soul, the Jivatma, a luminous point of consciousness, separate from body and thought. When the Kundalini reaches the Vishuddha chakra, which is in the throat, at the throat area, uh, then he longs for the aspirant. He longs to talk and hear only about God. Conversation of worldly subjects on women and gold causes great pain to him, and he leaves the place where people talk of these matters. When the Kundalini it comes from Vishuddha to Agya Chakra, which is in between the eyebrows, the aspirant realize that he sees the God in the form he sees God in the form of God. The aspirant realizes that the Jivatma is a part of Paramatma, the soul is a part of the oversoul. But still there remains a slight barrier between the devotee and God. It is like light inside the lantern. We can see the light, but we cannot touch it. So play, don't play with serpents. Most of the people they cannot go beyond this agya chakra. Now don't play with the serpent. These those who practice spiritual discipline without physical and mental purity, that is those who are not following the yam and niyam, they are only wasting their energy from the spiritual point of view. In some cases, as the mind is uh, you know in some of the cases, as the mind is stirred through meditation, all the good and evil things lying hidden in it may come to the surface with tremendous force and bring about a physical and mental collapse. In some other again, the stored up energy may manifest itself as cheap psychic power, such as thought trading, and such powers which make those persons egotistic and spiritually bankrupt. But for the sincere soul, following the moral discipline along with the practice of prayer, japa, and meditation, there is absolutely nothing to be afraid of. For him, spiritual life is very safe. Spiritual unfoldment is seldom uniform. This is spiritual, it does not take place in a straight line. After reaching a higher center, the aspirant may find the way closed. He gets stuck at that center and his energies get sidetracked. Purity of mind, strict regularity, and devotion ensure smooth spiritual progress. Out of 1,000 people who struggle for it, only one may get the awakening. In fact, in the beginning of one's spiritual life, it is better to forget all about Kundalini and think only about God.
God will grant you awakening at the right time. It is better to follow the path of synthesis, a combination of karma, jnana, and bhakti. Let selfless work go hand in hand with your meditation. That purifies and strengthens the mind. Practice self-analysis and make the mind detached and calm. And then japa does the rest. When properly done, japa creates an inner harmony which gradually flows along the sushumna, making it active. The best means of awakening of Kundalini, this Swami Brahmanandi Maharaj used to say that Kundalini can best be awakened by the practice of japa and meditation. The practice of japa is especially suited to this present state, and there is no spiritual practice easier than this. But meditation must accompany the repetition of the mantra. There are various ways of looking upon God. Making the heart the center of your consciousness, think of the divine spirit there in any form you like and repeat the divine name and holy text. The holy word and holy thought have great power. As one repeats the divine name and meditates on the divine spirit, one should feel that the holy vibrations and thoughts are making one's body, senses, mind, and ego purer and purer. When this is done with intensity, the breath becomes rhythmic, the vital energy becomes harmonious, the mind becomes purer and calm. The ego tends to become cosmocentric. This leads to spiritual unfoldment stage by stage. The essence of Kundalini. As consciousness rises higher and higher, it moves along both the horizontal and the vertical line. The soul and the oversoul are drawn close together. This is symbolized in the Mundak Upanishad by the analogy of two birds of beautiful feather who reside on the top and bottom branches of the same tree. The lower bird looks up and at last realizes that they are one. The lower bird is the individual soul sitting at the base of the spine. The upper bird is the supreme spirit sitting in the thousand petal lotus in the brain. Individual consciousness flowing along the spiritual channel of Sushumna reaches the topmost point, that is Sahasrar, and realizes its union with the Supreme Spirit. Now, this is when it reaches the seventh plane, that is Sahasradhar, that lotus dwells Sachidanand Shiva. The aspirant goes into Samadhi. There Kundalini, the awakened power, unites with Shiva. This is known as the union of Shiva and Shakti. When the Kundalini rises to the Sahasrar and the mind goes into Samadhi, the aspirant loses all consciousness of the outer world. He can no longer retain his physical body. The life breath lingers for 21 days only and then passes out. But the Ishwar Koti, such as the incarnation of God, can come down from the state of Samadhi. They can descend from the exalted state because they like to live in the company of devotees and enjoy the love of God. God retains in form of ego of knowledge or ego of devotion, so that they may teach men. Their mind moves between the sixth and the seventh plane. They run a boat race back and forth as it were between these two planes. These fully illumined souls see the one spirit shining in all being and are full of love and compassion for all people. It is they who bring us the message of superconscious. Their whole life is spent in guiding people along the spiritual path. Utterly free from all impurities and selfishness, ever immersed in the consciousness of the Supreme Spirit, these great men live for the good of the world.
taking unique examples. They सुचरिता are witnesses to वो तो the अच्छे है. done. But 1-2 line only. They are witnesses Okay. to the spiritual destiny of man, the divinization of the human soul. Thank you. Pranam Maharaj. Very Okay. good. Thank you. Very You Done. done well. Done. Good. So shall we start? Kundu? Yes, Start yes, your yes, question. Maharaj. Yes, Maharaj. Yes, please. I'll start with the first question, Maharaj. What is the page 529? What is the constitution of causal body? How is consciousness identified with it in deep sleep state? We were told in another context that in deep sleep, consciousness ceases, only ignorance exists. Will you please explain? No. Consciousness with ignorance. Okay, Maharaj. Consciousness will always remain Okay, in Maharaj. all the three levels and even beyond that. जागृत स्वप्न सुषुप्ति के बाद में भी कॉन्शियसनेस रहेगी और सुषुप्ति में भी कॉन्शियसनेस विद इग्नोरेंस रहेगी. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. Yes, ये रात सो जाते हैं जब व्हेन वी गेट अप वी से बहुत अच्छी तरह सोया था मैं कुछ नहीं जानता था. तो वी गेट अप एंड देन वी कंफर्म दैट मैं था वहां पर लेकिन मैं कुछ जानता नहीं था. इग्नोरेंस भी थी और मैं भी था. So consciousness is there in ignorance, both are there. Okay. So don't mix it up. Okay. And first, Maharaj, what is the constitution of causal body? Okay, Maharaj, like स्थूल body समझ गया, सूक्ष्म body समझ गया, causal body कैसे होता है? Like what is the constitution? Causal body, ignorance, pure ignorance. Okay, Maharaj. Pure Yes. ignorance. Yes, Maharaj. और वो रात को हम इसलिए मैंने कहा ना जब सो के उठते हैं तो कहते हैं मैं कुछ नहीं जानता था. The ignorance was there. ठीक महाराज. Your ignorance with consciousness. Remember, दोनों एक साथ होता है. अकेला नहीं ignorance. Yes, महाराज. महाराज जी, सॉरी. स्थूल शरीर भी जो है, स्थूल शरीर में फिजिकल बॉडी में सब चीजें हैं, उसके पीछे कॉन्शियसनेस है. हाँ. तो शरीर में माइंड है, उसके पीछे कॉन्शियसनेस है. Yes, महाराज. और सूक्ष्म शरीर में फाइनल जो होता है कारण शरीर में, उसमें इग्नोरेंस होता है और कॉन्शियसनेस. अच्छा महाराज, कैन इट बी इक्वेटेड विद अनन्य आनंदमय कोश? हाँ, आनंदमय कोश एंड वन एंड द सेम. देवाशीष क्या पूछ रहे थे? अरे जी, मैं जो अपना सुषुप्ति अवस्था में तो हमारा खाली कॉन्शियसनेस ही रहता है, मतलब है कि ऑल इग्नोरेंस वैनिशेस. इज इट ट्रू? No, we remain there. The consciousness is there, but it is covered with ignorance. That is the बट महाराज जी हमें तो पता ही नहीं चलता है कि हमें डीप स्लीप हुआ है, तो उसमें तो इग्नोरेंस को पता ही नहीं चलता है महाराज जी. इसलिए कि वहां पे इग्नोरेंस है, अज्ञान के कारण पता नहीं चलता है. जब सो के उठते हैं तब कहते हैं कि मेरे को नींद बड़ी अच्छी आई थी. हाँ, तब याद आता है तो नींद मेरी अच्छी आई थी, अच्छी नींद कभी. We had a good experience of a good sleep. That's why you get up and you realize it. महाराज जी ये तो इग्नोरेंस नहीं हुआ ना, गुड स्लीप हुआ तो हम तो कॉन्शियसनेस का साथ में रह गया. हाँ नहीं, but when you get up you say that I had a good sleep. Yes. That means consciousness was there. अच्छा, Because of ignorance you did not know. थैंक यू महाराज जी. थैंक यू. Second question. Maharaj, now a personal question, Maharaj. In the course of the whole day, we have so many changes of emotions and mood. Sometimes we think of lofty thoughts, sometimes we are full of baser feelings like jealousy, anger, etc. Does it mean that the spiritual power is always... वो आपका क्वेश्चन नहीं सुनाई दिया, दोबारा प्लीज करेंगे? Maharaj, what I was telling is, in the course of the whole day, we have so many changes of emotions and mood. Sometimes we think of lofty thoughts, sometimes we are full of baser feelings like jealousy, anger, etc. Does it mean that the spiritual power is always active in us and moves through different centers? Now, what do you mean by spiritual power?
लाइक कुंडलिनी, लाइक नेक्स्ट क्वेश्चन में वही पूछा, कुंडलिनी को तो बोलते हैं कि सोए रहते हैं और साधना के इसमें उसको जगाते हैं और धीरे धीरे वो ऊपर उठता है। तो इफ दैट इज सो, तो दिन में जब व्हेन वी आर नॉट डूइंग एनी साधना, we are doing our worldly activities, we are driven by worldly emotions, उस टाइम में भी स्पिरिचुअल पावर ही काम कर रहा है या हमारा लाइफ फोर्स और कुछ? कुंडलिनी, नो कुंडलिनी उस समय सोई हुई है। यस महाराज। वही कुंडलिनी की अगर बात कहोगे तो कुंडलिनी उस समय सोई रहती है, उस समय जागती नहीं है। तो वो क्या पावर है जिसके बल पे हम लोग काम कर रहे हैं? वो सिंपल मेंटल पावर है बस। वो प्राण जो है, प्राण शक्ति जो है, मेंटल एक्टिविटी है, मन का एक्टिविटी है। प्राण बोलो, कॉन्शियसनेस। ओके महाराज। प्राण एंड माइंड, दैट्स ऑल। ओके महाराज, सो दैट solves the next question also. All our activities are driven by energy or life force. How is it different from spiritual energy, which is said to be lying dormant or asleep at the base of the spine? सेम क्वेश्चन। हाँ, सेम क्वेश्चन है, वही मैं बोला कि दिस क्वेश्चन सॉल्व्स द सेम। प्राण एनर्जी, प्राण की शक्ति ले लो बस, और कुछ नहीं। ठीक महाराज, प्रणाम महाराज। शिवानी, शिवानी, शिवानी। प्रणाम महाराज। हाँ भाई। हाँ महाराज, मेरा क्वेश्चन है पेज नंबर 532। How do we know about our deep-rooted desires and passions? How can those be discovered? No, it cannot be discovered. ऐसा है कि मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो क्या है कि वो आपका थॉट रीडिंग कर सकते हैं, आपका स्टडी करेंगे, आप कौन सी काम कर रहे हो। बार बार अगर आप बार बार मंदिर में जाते हो तो आपकी डिजायर हुई कि आपकी स्पिरिचुअल डिजायर है, या फिर आप न्यूज़पेपर ज्यादा पढ़ते हो तो समझ में आता है कि तुम्हारी वर्ल्डली डिजायर है, पॉलिटिकल डिजायर है। तो इन अलग अलग प्रकार के जो एक्टिविटीज होती हैं उसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि हमारी एनर्जी कौन सी क्या है। बट इट इज वेरी डिफिकल्ट, इट इज ओनली यानी वो जो यानी जो साइकियाट्रिस्ट लोग हैं, साइकोलॉजिस्ट है, वो साइको एनालिसिस करके बताते हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि whatever it is, आपको अपने काम, क्रोध, लोभ को, छोटी वासनाओं को, बड़ी वासनाओं को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। तुम्हारा यही कहना है कि भाई हमारी वासना अगर पता चल जावे तो हम दूर कर सकेंगे। तो भाई खुद तो तुम जानते हो, तुम तो जानते होगे कि भाई मेरे को गुस्सा कम आता है या गुस्सा ज्यादा आता है, मेरे को खाने का ज्यादा टेस्ट है, या मुझे लोभ है, मैं पैसा ज्यादा चाहती हूँ। ये छोटी मोटी डिजायर जितनी है तुम उसको जानते हो, उसको दूर करने का प्रयत्न करो। शास्त्रों को पढ़ते हैं तो शास्त्र में बताया गया है कि ये किताब काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर हैं, इनको दूर करना है। और ठाकुर कहते हैं कि दूर करने के लिए दो उपाय हैं। जो छोटी वासनाएं हो उसको भोग करके और विचार करके छोड़ो। ठाकुर ने कहा कि मेरे को रसगुल्ला खाने की, संदेश खाने की इच्छा हुई तो बहुत सारा संदेश खाया और विचार किया कि ये मन, इसी को कहते हैं संदेश खाना। उसके बाद मेरा पेट खराब हो गया, मजाक करते हुए ठाकुर बोलते हैं। तो और बड़ी वासनाओं को जो है वो मन ही मन त्याग करना है, बड़ी को विचार के ही त्याग करना है। भोग करने में उसमें फंस जाओगे, और बहुत सारा पैसा कमाना है तो उसमें संसार में फंस ही जाओगे। बच्चे होना चाहिए तो फिर संसार में एक बार फंस गए तो फंस गए। तो बड़ी वासनाओं को विचार करके त्याग करो और छोटी वासनाओं को भोग और विचार दोनों करके त्याग। ठीक है महाराज। ठीक है, हाँ ठीक है महाराज। हम जब ध्यान में बैठते हैं तो ये सुप्त वासना सब ऊपर ऊपर उठती है, तो वो भी एक पथ है। मतलब क्या होता है? मन को जब शांत रखते हैं हम, मन को जब हम शांत करके ध्यान में बैठते हैं तो शुरू में मन में बहुत हलचल होती है, सुप्त वासनाएं जगती है, सुप्त वासनाएं के ऊपर आती है, तो हमको पता नहीं लगता कि हमारे मन में इतने खराब विचार है। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ध्यान के द्वारा जब मन को अगर तुम शांत करने का प्रयत्न करोगे, मन को अपने इसीलिए कहते हैं कि अपने मन को देखना भी एक प्रकार की साधना है। चुपचाप कुछ मत करो। यतेश्वरन जी बोलते थे कि शुरू में 5 मिनट बैठकर केवल मन को देखो,
तो तुमको बहुत सारी बातें आएंगी तो पता चल जाएगा, अरे बाप रे मेरे मन में कितनी कितनी चीजें फंसी हुई। तो ये एक प्रकार से पता चल जाता है। देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट वे ऑफ नोइंग हमारे अंदर भीतर क्या क्या बात है। ठीक है, वेरी गुड जी। ठीक है महाराज, नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज 533, हाउ द लेटेंट impressions of the past experiences affect us? क्या है कि जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंस हैं उन्हीं को ही मिलके ही हमारा चरित्र बना है। लेटेंट इंप्रेशन जो हमारे हैं पास्ट, हमारे पता नहीं जन्म जन्मांतर के संस्कारों से हमारा चरित्र उसी प्रकार बना है, और 90% हम जो हैं उसी के द्वारा प्रेरित होकर कुछ काम करते हैं। हम साधु बने तो हमारे संस्कार कुछ बने हुए थे, उसके कारण हम बने। तुम एक प्रकार का काम कर रही हो, तुम आध्यात्मिक किताबें पढ़ रही हो, तो उसके तुम्हारे जो लेटेंट इंप्रेशंस थे उसके द्वारा ही ये सब हो रहे हैं। हम सारा हमारा चरित्र या लेटेंट इंप्रेशंस यही हमारे को ड्राइव कर रहे हैं। तो इसको व्हाट इज योर क्वेश्चन देन, उसको देखना पड़ेगा। उसको देखो, जिसमें अच्छे हो उनको करने दो और जो बुरे हैं उनको त्याग कर। ठीक है, ओके महाराज जी एक रिलेटेड क्वेश्चन है, एक्चुअली इट इज फ्रॉम प्रीवियस संडेज क्लास, मैं पूछ नहीं पाया था। वो यही था कि उसमें स्वामी जी हेरिडिटी की बात करते हैं, संस्कार की बात करते हैं, पास्ट लाइव्स की बात करते हैं। तो हाउ डज ए रैंक मटेरियलिस्ट कंसाइल विद संस्कारास एंड पास्ट लाइफ? हेरिडिटी तो जेनेटिक है, नहीं हेरिडिटी तो जेनेटिक है अबाउट बॉडी एंड ऑल, तो वो कैसे संस्कार को कैसे एक्सप्लेन करती, पास्ट लाइफ को कैसे एक्सप्लेन करती है? हेरिडिटी तो एक्सप्लेन नहीं करती। नहीं, वो तो कहते हैं ना कि वो हमारा हेरिडिटी कारण है, जेनेटिक्स के कारण है। ये मटीरियलिस्ट का लोग है, वो कर्म की बात नहीं करते हैं। हमारे पूरे पहले जो है वो इम्प्रेशंस थे, जेनेटिक्स था, हेरिडिटी के कारण मैं इस फैमिली में जन्म हुआ हूँ। तो एक प्रकार से तो वो संस्कार को स्वीकार कर रहे हैं, हेरिडिटी वर्ड नहीं यूज कर रहे हैं, संस्कार वर्ड यूज कर, संस्कार वर्ड नहीं करके हेरिडिटी यूज कर रहे हैं। लेट इट रिमेन, व्हाट डज इट मैटर? ठीक है। ओनली थिंग इज वी बिलीव दैट यू कैन बिल्ड योर कैरेक्टर, चाहे कैसा भी होवे, लेकिन सेल्फ एफर्ट भी एक ऐसी चीज है, केवल संस्कार की बात नहीं, सेल्फ एफर्ट के द्वारा हम संस्कारों को भी बदला जा सकता है। जी महाराज, ठीक है, ठीक है, ओके महाराज। महाराज हेरिडिटी को अप्रूव कैसे करेंगे? अप्रूव ने अपने संस्कार, हेरिडिटी को रहने दीजिए ना, आपको क्या आपत्ति है? नहीं, अब उसके बदले आप जितना कर सको उतना करो जी, जितना प्रयत्न कर सकते हो, जितनी साधना कर सकते हो उतना करो, धीरे धीरे बदल जाएगा। जी जी। हाँ, अच्छा, तो इसको अप्रूव करने की कोशिश नहीं करना चाहिए, नहीं, वरना ये वरना वो रिबाउंड होता है। ऐसा है कि काम अगर है तो काम को अप्रूव नहीं, लेकिन काम को कंट्रोल तो किया जा सकता है। क्रोध है, लोभ है, ये मेरे पूर्व संस्कारों के द्वारा आया है, हेरिडिटी के द्वारा आ रहा है, तो तत्काल उसको मैं नहीं निकाल सकूंगा, लेकिन फिर भी मैं बहुत सारा उसको कंट्रोल तो कर सकूंगा। यस, रिमेम्बर, राइट, वो तो मेरे हाथ में है ना, पुरुषार्थ तो है मेरे हाथ में। हाँ। Maharaj, next question, page 535. The practice of concentration without purification of mind is dangerous. What about those then who are practicing concentration or meditation for health benefits? ऐसा है कि हेल्थ बेनिफिट के लिए जनरली तो प्राणायाम और आसन, प्राणायाम और आसन और 5, 10, 15 मिनट के लिए मेडिटेशन में बैठ जाते हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, उससे कुछ नहीं होने वाला। ये तो जब गहरा मेडिटेशन हो, 4-5 घंटे का मेडिटेशन हो, तब ये प्यूरिटी की बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ऐसे जो लोग हेल्थ के लिए कर रहे हैं, 10-15 मिनट के लिए बैठ गए, थोड़ा आसन करने के बाद, प्राणायाम करने के बाद में उनको उनके योगा इंस्ट्रक्टर ने कहा अब बैठ जाओ, ध्यान करो, तो 15 मिनट ध्यान कर लिया, लंबा लंबा सांस लो, अब ध्यान करो, इससे कुछ नहीं हो, ये कुछ नहीं, उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं। महाराज आजकल इतने लोग जो विपासना करते हैं, जो विपासना मेडिटेशन कुछ है वो करते, वो उसका कोई बेनिफिट होता है क्या विदाउट? अरे वो जो भी होता होगा, मन को थोड़ा शांत करता,
मन को शांत करता है, कंसंट्रेशन नहीं करता। विपश्यना जो है ना, वो एक अवेयरनेस की एक्सरसाइज है। राइट राइट। मेनली इट इज अवेयरनेस एक्सरसाइज, कंसंट्रेशन की एक्सरसाइज नहीं है। अच्छा अच्छा। So you know your mind and become peaceful. That's all. अच्छा, इससे और कुछ नहीं होता। ठीक है महाराज। Next question again on page 535, last paragraph. After reaching the highest center, the aspirant may find the way closed. He gets stuck in that center and his energies get sidetracked. Why and how the way we found closed? ये देखो, ऐसा है कि दिस इज अ वेरी हाई थिंग, वेरी हाईली टेक्निकल। यू नो, दिस वे हमारे जीवन में इस प्रकार की पता नहीं कभी आएगी कि नहीं। जो लोग काफी ध्यान करते हैं, यू नो, कोई 3 बजे 4 बजे उठ के 2 घंटा ध्यान करे, खाना खाने के बाद में 4 बजे 3 बजे से 4 बजे तक फिर ध्यान करे। ऐसा जो ध्यान सेंटर्ड लाइफ जिसका होगा ना, उनके जीवन में ऐसी वेरियस थिंग्स आती हैं कि थोड़ा आप कर रहे हैं, इतने 15 दिन तो ध्यान अच्छा हुआ था, अब मेरा ध्यान अच्छा नहीं हो रहा है। कितना संघर्ष कर रहे हैं फिर भी अच्छा नहीं ध्यान हो रहा है, और मन में बारे बारे विचार, बुरे विचार आ रहे हैं। तो इस प्रकार का होता है। उसके बाद में लगे रहे, उसके बाद टेक्निक होती है, भाई ध्यान के बदले जब करो तो ये चीज चली जाए। तो इस तरह की चीजें जो है ना, ये सीरियस, वेरी सीरियस स्पिरिचुअल एस्पिरेंट जो ध्यान निष्ठ जीवन व्यतीत कर रहा है, उसके जीवन में आती हैं। अधिकांश लोगों के जीवन में इस प्रकार की चीज नहीं। महाराज जी, इसमें ये सेंटेंस लिखा है, these intervals or dry periods described as dark nights of the soul by the great Christian। अभी तुम्हारा जब आएगा दिलीप भाई। अच्छा, नहीं, ये कंटिन्यूएशन में था इसलिए मैंने पूछा। अच्छा, ऐसा है कि डार्क नाइट ऑफ द सोल का मतलब है, हाँ, डार्क नाइट ऑफ द सोल है कि फिर वो ब्लैक वाटर्स भी तो है। हाँ, वो ब्लैक वाटर्स दूसरा पैराग्राफ में है। अच्छा, बाद में डार्क नाइट यानी ये है डार्क नाइट ऑफ सोल। एक इंग्लिश में क्रिश्चियंस लोग एक टेक्निकल चीज यूज करते हैं वर्ड। इसमें यह है कि आपको कुछ पता नहीं चल रहा है, ध्यान नहीं हो रहा है, मन जो है अंधकार में मानो हो गया है। मैंने 15 दिन तक किया, बहुत मेहनत की, कुछ नहीं हो रहा है। पहले थोड़ा अच्छा चल रहा था, बड़ा आनंद आ रहा था, अब वह डार्क नाइट हो गई, अंधकार रात्रि जिसे कहते हैं ना। मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, भगवान का दर्शन ठीक से नहीं हो रहा ध्यान में, इसे डार्क नाइट। और पुराने जो हैं बुरे संस्कार आ जाते हैं, वो हमें ध्यान करने नहीं देते। इस प्रकार की कई प्रकार की स्टेजेस आती। राइट जी, राइट। घबराओ नहीं दिलीप भाई, किए जाओ। ऐसा कि भाई मैं करूंगा और उसके बाद डार्क नाइट आ जाएगी तो क्या करूंगा, ऐसा मत समझना। महाराज जी कुछ तुम्हारे ऐसा करो, और अगर डार्क नाइट आए ना तो मैं कहूंगा कि तुम आगे प्रोग्रेस कर रहे हो। हाँ महाराज जी पूछो, महाराज जी पूछो कुछ। नहीं, इससे संबंधित है क्या? हेलो, अभी एक क्वेश्चन और बचा हुआ। ये महाराज जी बोलो। ठीक है, इसके बाद मैं बोल रहा हूँ महाराज जी, जैसे मैं पूछूं? हाँ बोलिए। नहीं महाराज जी, ये जो मेडिटेशन होता है, मेडिटेशन क्यों रहे हो? नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि ये मेडिटेशन होता है, कुछ लोग का तो मेडिटेशन बहुत ही अच्छा हो, जैसे जयद्रथ का मेडिटेशन अच्छा हुआ था, रावण का मेडिटेशन अच्छा हुआ, ये तो दूसरा तरफ चला जाता है मेडिटेशन जो है। मैंने मतलब है कि राइट कौन सा? हाँ, हेलो, बोलो, क्या बोल रहे हो तुम्हारे? मैं बोल रहा हूँ कि मेडिटेशन तो राइट होना चाहिए, कैसे समझ में आए? क्योंकि कभी कभी ऐसा मेडिटेशन होता है कि दूसरा तरफ भगा देता है, आई मीन डिस्ट्रक्टिव वे में चला जाता है मन, और खराब चीज। नहीं तो वो तो जैसे हमारे मेडिटेशन नहीं हुआ, वो तो कंसंट्रेशन, वो तो ऑब्स्ट्रक्शन है, वो तो बाधा है। व्हाई डू यू कॉल इट मेडिटेशन? योर माइंड इज गॉन इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, दैट इज नॉट मेडिटेशन एट ऑल। Why do you call it meditation? It is a hindrance, बाधा है।
ओहो, अच्छा, अच्छा। क्वेश्चन 5 शिवानी। जी महाराज। महाराज इसमें नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, पेज 536, थर्ड पैराग्राफ. Japa will do the rest. Means if we are unable to concentrate at one point and doing only mantra jap, is it right? देखो इस आर्टिकल में देखो ये लिखा है ना, जो जप के बारे में लिखा है ना कि जपा विल डू द रेस्ट, ओके। उसके पहले पढ़ो तो उसमें लिखा और भी चीजें लिखी है, सेल्फ एनालिसिस करो, सेल्फलेस वर्क करो। A combination of karma, jnana and bhakti. Let selfless work go hand in hand with your meditation. That purifies and strengthens the mind. Practice self-analysis and make the mind detach and calm. Then japa does the rest. तो पहले ये डिटैचमेंट और काम होना चाहिए, सेल्फिश वर्क के द्वारा चित्त शुद्धि होनी चाहिए, सेल्फ एनालिसिस से मन काम होना चाहिए, जपा विल डू द रेस्ट। नाउ इज इट क्लियर? Yes. महाराज मतलब कि अगर खाली जप भी कर रहे हैं तो वो भी उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट अच्छा आएगा। अरे अगर रुपया देखो, सुनो सुनो, रुपया 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 ऐसा जप करोगे तो रुपया तुम्हारे पास आएगा नहीं। गुरु मंत्र का जप। तुमको दृष्टांत दे रहा हूँ, केवल रुपया रुपया करो और भी कुछ मत करो, 1000 50,000 रुपया रुपया मंत्र का जप करो, तुम्हारा मन जो है वो रुपये से वो हो जाएगा, बार बार रुपया आएगा, रुपये की प्रॉब्लम भी आएगी, चिंता भी आएगी, चोर भी आएगी। उसी प्रकार से अगर भगवान का नाम राम 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 10,000 बार करोगे तो कुछ न कुछ प्रभाव तो पड़ेगा, लेकिन ये पर्पस नहीं है। अगर जब पर डू द रेस्ट मतलब ये है, देखो मेरे को ये अच्छा नहीं लगता है कि हर बार बोलते हैं लोग जब करेंगे जब करेंगे। अरे जब का अर्थ है जब तद अर्थ भावनम, एकाग्रता के द्वारा अर्थ का चिंतन करते हुए जप करना चाहिए। ये तो करेंगे नहीं, बार बार जप जप की बात करेंगे तो पहले अपने को सर्विस करो, सर्विस से चित्त शुद्धि करो, सेल्फ अवेयरनेस से शांत हो जाए मन, उसके बाद में एकाग्रता पूर्वक तद जप तद अर्थ भावनम, भगवान के नाम का अर्थ का चिंतन करके उसके नाम का जप करने से डू द रेस्ट, इट विल सब कुछ हो जाएगा। गॉट माय पॉइंट? जी हाँ, अब कुछ पूछना है तुमको? बस महाराज, थैंक यू। अब इसे जप करना, यू नो, इट इज नॉट सो इजी, थोड़ा लगना पड़ता है उसके अंदर। नहीं, मुझे ये है कि जैसे हम जब गुरु जी ने जो बताया है प्रोसेस वो करते हैं, उस पे कंसंट्रेट करते हैं, पर उसमें से हट जाता है, अगर एक ही जगह हम नहीं ध्यान दे पाते तो खाली मंत्र जाप ही अगर करते रहें तो मैंने जैसा कहा कि अब केवल बिना मंत्र के, बिना मन के भी अगर जप करोगे 10,000 15,000 तो प्रभाव तो पड़ेगा। रुपया रुपया करने के बदले राम 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 कर रहे हो तो उसका प्रभाव तो पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर एकाग्र मन से करोगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छा लाभ होगा। ठीक है ना? ठीक है महाराज। अच्छा, ठीक है, थैंक यू महाराज। सपना सपना Maharaj. First question 529. Ignorance covers this true nature. When a person dies, then subtle body remains with all sanskaras. So is ignorance still there with this subtle body, or after rebirth only it is manifested in the mind? नहीं, सटल बॉडी के साथ में सूक्ष्म कारण बॉडी भी, कारण शरीर भी रहता है। तो कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, ये दोनों चले जाते हैं तो उसमें इग्नोरेंस रहता है। इग्नोरेंस रहता है, बिना उसके नहीं होगा। इग्नोरेंस जब तक मुक्ति नहीं होती तब तक बना रहेगा। ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन है पेज 531, लास्ट पैराग्राफ. ईच सेंटर इज अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट between the individual and the cosmic on a particular plane of consciousness.
इसका मीनिंग नहीं, व्हाट इज द मीनिंग? मतलब ये है कि जैसे प्राण, हमारा प्राणमय कोश जो है वो कॉस्मिक, यानी कॉस्मिक जो व्यष्टि, समष्टि और व्यष्टि दोनों, जी। समष्टि प्राणमय कोश और व्यष्टि प्राणमय कोश दोनों संयुक्त हैं। इसलिए जब तूफान आता है, बहुत ठंड पड़ती है, तब हमको भी अफेक्ट होता है कि नहीं होता? अगर बहुत गर्मी होगी तो हमको भी अफेक्ट होगा कि नहीं होगा? अच्छा। हाँ, मनोमय कोश भी, अगर चारों तरफ बहुत सारा डिस्टरबेंस हो, अब उधर कल्पना करो कि वो अपने यूक्रेन में, यूक्रेन में ऐसी चीज हो रही है और कोई आदमी जो है वो युद्ध से संबंधित नहीं है, लेकिन उसके ऊपर क्या मन का उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका मन और बाहर का समष्टि मन और व्यष्टि मन दोनों संबंधित हैं, वो हमेशा रहेगी। अच्छा, each center is a point of contact. Okay, okay. ठीक है? ओके, ठीक है। रीता, चलो रीता। Pranam Swami ji. Okay. Actually, my first question is that Swamiji says that due to ignorance, we feel we have two kinds of bodies, gross and mental. Only through introspection we can find we have a subtle body called the causal body, and Atman is beyond these three. How to introspect so that awareness of causal body is there? Okay. तुम्हारा क्वेश्चन है व्हाट इज इंट्रोस्पेक्शन, हाउ टू इंट्रोस्पेक्ट? Yes, how to introspect? ऐसा है कि आप ओके नाउ you know you can find out your physical body, ये तो समझ में आ जाता है, very easy, isn't it? Yes. Mental body समझ में आता है, mind also you understand. Okay, now quietly you sit और उसको सोचने का प्रयत्न करो, अपने माइंड को सोचने का प्रयत्न करो। माइंड को सोचने का नहीं, वो यानी you are thinking of the subtle body, not the causal body. हाँ। उसके बाद में what will happen is that gradually जो if you do introspection, विचार करोगे तो तुमको लगेगा कि there is something else. When mind quietens down, there must be something that is the causal body. तो इसको स्वामी यतीश्वरन जी कहते हैं कि इंट्रोस्पेक्ट करना है। दूसरा क्या है इंट्रोस्पेक्शन का? फर्स्ट है कि when I sleep, when I get up from the sleep, I say I slept well, I didn't know. Yes. So there must be, क्योंकि their mind was not there, तो mind was not there, तो सूक्ष्म शरीर तो नहीं था, मतलब कारण शरीर तो होना चाहिए। अच्छा, then our deep, I mean as I told you second, our mind can go deep and feel behind the thoughts. If you carefully inspect, our mind can go beyond our mind also. And we can feel that there is something beyond. Yes. And this is very important. एक यदि आपको ये मेथड यानी प्रोसीजर मिल जावे, इतनी कैपेसिटी हो जावे, तो आप मन के द्वारा डिस्टर्ब नहीं होंगे. You can go beyond your mind and that becomes a great advantage. Okay? महाराज ये समझ में नहीं आया, ये मन के पार कैसे जाना? See, ऐसा है कि जैसे ये मैंने कहा कि अगर आप मन को do the introspection of the mind, ठीक है, मन को जरा साक्षी बन के देखने का प्रयत्न करो, तब लगेगा तुमको कि तुम मन के परे जा सकते हो. You are able to go beyond the mind. And then there is a great advantage. You know that, oh, I am not merely mind. My desires, I can see my desires. My likes and dislikes, I can see. ये very, very important thing. अपने को इंस्पेक्शन करके, इंट्रोस्पेक्शन करके, साक्षी बन के हमारे मन से भी अलग होना चाहिए. तब हमको लगेगा कि हम मन नहीं हैं, हमारे मन के पीछे भी एक आत्मा है. ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है. यानी ये साक्षी चैतन्य यही है ना? हाँ, साक्षी करने का प्रयत्न करो, बोलने से होगा नहीं. अच्छा, ट्राई टू स्पिरिट, साक्षी भाव करने का प्रयत्न करो तो ठीक है. महाराज डिजायर को अगर हम देख सकते हैं, उसका मतलब क्या? मन मतलब माइंड इज गोइंग बियॉन्ड आवर माइंड.
हाँ, माइंड के दो पार्ट हो गए। हाँ, दो हाँ। पार्ट है। We can एक ऑब्जर्वर हो गया। ऑब्जर्विंग माइंड है, अनदर पार्ट इज ऑब्जर्व माइंड। Yes, yes. तो हमको पता चल गया कि भाई मुझ में ये डिजायर्स है, तो मैं जान गया कि मैं माइंड नहीं हूँ। आई एम ए विटनेस, आई एम ए सीयर ऑफ द माइंड। Yes, 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 yes. दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस। ऐसा होने से हम कितना मुक्त अनुभव करेंगे। महाराज यही तो चैतन्य ही हो गया ना। हाँ, एक प्रकार से चैतन्य होगा। वी कैन नॉट गो बियॉन्ड दैट, यू नो। चैतन्य को तो हम जान नहीं सकते, हमारा तो वास्तविक स्वरूप चैतन्य है, उसको हम प्राप्त नहीं कर सकते। दिस इज द नियरेस्ट वी कैन गो टू। ओके ओके, ठीक। महाराज जी ये जो इंट्रोस्पेक्शन की बात हो रही है, इसी पैराग्राफ में इसका जवाब दिया हुआ है। हाँ, दिया हुआ है। हाउ टू डेवलप द पावर ऑफ इंट्रोस्पेक्शन। वो कहते हैं कि द माइंड बिकम्स प्योर एज अ रिजल्ट ऑफ मॉरल डिसिप्लिन, प्रेयर, रिपीटिशन, डिवाइन नेम एंड मेडिटेशन। यही तुम्हारा को इंट्रोस्पेक्शन डेवलप करने का क्षमता देगी। ये माइंड है। हाँ, तो these are the practices to be followed to develop the power of introspection. वो स्वामी जी ने इसमें दिया हुआ है। किसी ने बोला क्वेश्चन भी है किसी का कि इंट्रोस्पेक्शन कैसे डेवलप करना। इसी प्रकार से इंट्रोस्पेक्शन डेवलप होता है। हो गया? हो गया सर। स्वामी जी, सेकंड क्वेश्चन इज आल्सो आंसर्ड इन द फर्स्ट वन। I had asked the second question that Swamiji has outlined the way to develop power of introspection. Page 530, para 3. In my case, I still find I'm moving from one center to another in the physical centers. I feel upset as I find I am not progressing at all. So I asked what to do, and you have already answered what to do. How to introspect? No. When your center of consciousness goes on changing, don't worry about changing the principle. Don't work out about the center of consciousness. Just go on thinking of God और कुछ मत करो। Okay, स्वामी जी। या तो हृदय में या आईब्रो में या हृदय में भगवान का चिंतन करो, बस एक पॉइंट के ऊपर, और कुछ गड़बड़ मत करो। Okay, स्वामी जी। I think I was doing. You go on changing your center of consciousness. You go on changing your technique of meditation. ये मत करो। जो गुरु ने कहा है उसके अनुसार रेगुलरली करो और सिंसियरली करो। हाँ, yes स्वामी। Yes स्वामी। ओके, निवेदिता जी महाराज। महाराज, मेरा पहला प्रश्न है कि as consciousness arises, as consciousness rises higher and higher, it moves along both dimensions, horizontal and vertical. Please explain 537 में। अच्छा, तो अन्नपूर्णा नमस्ते। अच्छा सुनो। हाँ जी। कॉन्शियसनेस जो है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ना, वर्टिकल तो समझ गए। हाँ, वर्टिकल समझ गए। वर्टिकल समझ गए ना। अब हुआ हॉरिजॉन्टल। अब हमारा माइंड जो है, हम कॉन्शियस मेंटल लेवल पे आ गए, हम विचार कर रहे हैं भगवान का। अब वो विचार हमने एक इस मेंटल लेवल पे आ गए हैं। अब ये विचार में हम रूप ध्यान कर रहे हैं, गुण ज्ञान कर रहे हैं, स्वरूप ध्यान कर रहे हैं। ये क्या हुआ? ये वर्टिकल लेवल में एक्सपेंशन हुआ कि नहीं हुआ? ठीक। वी आर नॉट चेंजिंग द आवर सेंटर ऑफ कॉन्शियसनेस, इजंट इट? हम मेंटल लेवल पे हैं, हम या तो हृदय में है या फिर अपने भ्रूमध्य में है या थ्रोट में है, और इस लेवल पे हम भगवान का विभिन्न प्रकार से चिंतन कर रहे हैं। तो वर्टिकल लेवल हॉरिजॉन्टल लेवल में एक्सपेंशन हुआ ना? क्यों महाराज? ये वर्टिकल में हुआ महाराज, फिर हॉरिजॉन्टल। वो क्या आप नीचे आए क्या? हैव यू कम डाउन टू द लोअर लेवल? पेट के लेवल पे तो आए नहीं, खाने के लेवल पे आए नहीं। तुम्हारा मन भगवान में ही लगा हुआ है। बेलूर मठ का सारा चिंतन कर रहे हो तुम बैठ के, या लीला चिंतन कर रहे हो भगवान का? ये हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन हुआ। अच्छा, That's the point. Is that clear? नहीं महाराज, हॉरिजॉन्टल क्लियर नहीं हुआ, वर्टिकल तो समझ में आता है। हॉरिजॉन्टल मतलब कंटीन्यूअस चिंतन।
वर्टिकल चल गया ना, ठीक है, वर्टिकल की कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो हमारा मन अब है, हमारा मन जो है वो गले पे आ गया है। जी। अब हमारा मन केवल भगवान के चिंतन में लगता है। हाँ। ठीक है। यस। अब ये भगवान का चिंतन हम कई प्रकार से करते हैं। हाँ। हम मन को बेलूर मठ ले जाते हैं, जी। हमको दक्षिणेश्वर में ले जाते हैं, हाँ। ठाकुर के कमरे में ले जाते हैं। इसलिए इस प्रकार से करते रहते हैं, तो उससे हमारा मन जो है वो कहाँ गया? चल तो रहा है मन जी, लेकिन एक ही लेवल पे है ना, केवल वर्टिकल लेवल पे एक स्तर पे ही है, वो चेंज नहीं हुआ। हाँ, नहीं हुआ। लेकिन जी। वहां पे विस्तार हो रहा है। ये विस्तार किस लेवल पे हो रहा है? ये हॉरिजॉन्टल हो रहा है। जी। ये मेरा कहना। अच्छा महाराज जी, तो ये जब सहस्त्रार चक्र पे जाएगा तो वहां पे हॉरिजॉन्टल का चांसेस लेते हैं क्या? कहाँ पे? सहस्त्रार लास्ट फाइनल चक्र, सहस्त्रार। फाइनल चक्र में तो सब दोनों, वहां तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल सब समाप्त हो जाता है, उसके बाद छोड़ दो। ओके। When we reach to the meditation highest level. सुनो, पेट के लेवल पे रहेगा। ओके। तो पेट के लेवल पे मन में आएगा कि आज आइसक्रीम खाना है या पूरन पोली खाना है, कहाँ से लाना है, कैसे बनाना है, ये सब जो रहा है ये पेट के मणिपुर हॉरिजॉन्टल थिंकिंग हो रहा है। ये मणिपुर में हो रहा है। हाँ, that is horizontal. मणिपुर में हॉरिजॉन्टल खूब हो रहा है जम के। जी जी, राइट। ठीक है। हाँ, अच्छा, उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड है, हाउ कैन वी नो दैट आवर कारण शरीर अपार्ट फ्रॉम द सुषुप्ति? ये तो अभी आपने बताया महाराज, हो गया, डिस्कस हो गया। ये हो गया। अच्छा, एक जगह मैंने पढ़ा था कि कारण शरीर कैन बी चेंज बाय जपम। इसी ना 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 ना, कारण शरीर में तो अज्ञान रहता है बस। हाँ, वही तो, ठीक है। अच्छा, हाउ कैन वी अप्रूट अवर पैशंस लाई इन अवर सबकॉन्शियस माइंड टू मेक प्रोग्रेस इन स्पिरिचुअल लाइफ? ये भी आपने अभी डिस्कशन कर लिया। डिस्कस हो गया। डिस्कस जी। इन द बिगिनिंग इट इज डिफिकल्ट टू force, ये important, in the beginning it is difficult to force the psychic energy along the sushumna by the exercise of willpower alone. Yes. ये पेज नंबर 533 में है, तो ये मुझे नहीं समझ रहा है। यानी शुरू में हाँ, जो हमारी कुंडलिनी शक्ति है उसको बीच में डालना कठिन है। क्यों? हमारी तैयारी नहीं है, हम चंचल हैं, हमारा मन जो है वो नीचे के केंद्रों में बहुत जाता है। इसलिए दूसरे स्पिरिचुअल डिसिप्लिन करना पड़ेगा, यम नियम का आसन करना पड़ेगा, आसन करना पड़ेगा, प्राणायाम करना पड़ेगा, सेवा करनी पड़ेगी, ये सब करना पड़ेगा, तब हम तैयार होंगे हमारे कुंडलिनी शक्ति को ऊपर उठाने के। अच्छा अच्छा, फिर से पढ़ो उसको। ठीक है, 4 नंबर ना। हाँ, ये इन द बिगिनिंग इट इज डिफिकल्ट टू फोर्स द साइकिक एनर्जी अलोंग द सुषुम्ना बाय द एक्सरसाइज ऑफ विल पावर अलोन। मतलब दूसरे को भी हमको हेल्प लेना पड़ेगा। हाँ, यस। दूसरे साधना बहुत जरूरी, दूसरे साधना भी इम्पोर्टेंट है। लास्ट क्वेश्चन है, आवर थॉट्स, फीलिंग एंड एक्टिविटीज चेंज विथ आवर मूड। दीज मूड्स हैव समथिंग टू डू with the center of consciousness with which we may be connected at a particular times. ये मूड से ये हम जब मंदिर में जाते हैं ना तो हमारा मूड चेंज हो जाता है। हाँ, तो वो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस अपना हमारा चेंज होते रहता है। नहीं, लेवल ऑफ चेंज से हम अपना चेंज हो जाता है, लेवल चेंज हो जाता है। अगर हम खाने की बात करते रहे, खाने जाए हैं, एक भंडारा में जाएंगे तो हमारा लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस 3 नंबर पे आ गया। यस, करेक्ट, ठीक है। तो बस सब चेंज होता है। जी महाराज, समझ गए महाराज। अच्छा, दिलीप भाई आ जाइए। और बोलो और कुछ। महाराज आत्म प्रियानंद जी है ना, वो बता रहे थे
जो हॉरिजॉन्टल और जो वर्टिकल का, तो वर्टिकल वो एक लिफ्ट के समान, लिफ्ट के उदाहरण से बताते हैं। वो बोलते वर्टिकल में अपना ये विज्ञान में कोष तक वर्टिकल में गए, उसके बाद हॉरिजॉन्टल आ गया, वो है हिरण्यगर्भ। नहीं 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 नहीं, वो क्या है, वो यतीश्वरानंद जी बोलते हैं वर्टिकल लिफ्ट की बात करते हैं, उसके बाद कहते हैं कि आप 5वें लेवल पे आए, उसके बाद लिफ्ट खुल गई। हाँ यही बोल रहे। ये कहाँ पर है महाराज? ये तो एडवेंचर में मुझे मिला ही नहीं। यतीश्वरानंद जी क्या एडवेंचर ऑफ रिलीजियस लाइफ, ये मुझे मिला ही नहीं, मैं बहुत खोजा। नहीं नहीं, उसमें कहते हैं कि बाहर निकल के घूमने लगे, फिर वापस आए तो देखा फिर लिफ्ट का दरवाजा बंद है, खुलता ही नहीं है। अच्छा अच्छा, ऐसा भी होता है। ये हम एक लेवल पर रहे। इसी व्हाट हैपेंस इज, हम लोगों का अधिकांश में हम लोग जो है ना तीसरे चौथे लेवल पे अधिकांश रहते हैं। We are continuously moving in the horizontal plane, थर्ड फोर्थ में। आगे ऊपर जाने के लिए हम कुछ भी तैयारी नहीं कर पाते हैं, बढ़ नहीं पाते, ऊपर जा नहीं पाते हैं। हमारी सारी प्रॉब्लम है और उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। ये हॉरिजॉन्टल जो एनर्जी हमारी वेस्ट होती है उसको हमें रोकना पड़ेगा और रोक कर ऊपर जाने का प्रयत्न, ऊपर जाने। ओके जी। और उसके बाद में चौथे पांचवे पे रहे तो ठीक है, पांचवे के ऊपर जाने पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सब हो जाता है। वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, नमस्कार दिलीप भाई। हाँ महाराज जी प्रणाम। हाँ भाई आइए 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 दिलीप भाई आइए। महाराज जी पहला सवाल ये है, ये तंत्र और चक्र आर द सेम? तंत्र एंड मंत्र एंड चक्रास, ये तीन चीज है, ये तीनों एक ही है क्या? तंत्र मंत्र चक्र, हाँ। क्या तीनों एक हैं? तो मैं ये पूछूंगा, मुझे बता सविता, अबे क्या कमला, राधा, दया, वो जो ला आ सब में आएगा तो सब एक हो जाएगा क्या? क्या समझे नहीं तुम्हारी बात? महाराज ये नाम रूप रंग अलग हो गए परंतु चीज तो एक है क्या? मेरा सिर्फ पूछने का अर्थ ये है कि तंत्र विद्या और चक्र विद्या में क्या फर्क है? क्योंकि विद्या की बात नहीं महाराज, सवाल ये है कि जिस प्रकार से योगा आज चल रहा है वैसे कुंडलिनी जागरण भी बहुत जोरों का चल रहा है और ये बताते हैं कि 7 दिन में कुंडलिनी जागरण होती है, 3 मिनट में भी होती है। तो इसलिए मेरा पूछने का अर्थ है कि ये क्या तंत्र विद्या में ले जाती है क्या, जो ये बताती है? बहुत सारी देवी देखो ना, तुमने किया कि नहीं अभी तक? मैं वहां जाता नहीं। 7 दिन है, मैं तो पर ये मेरा लेते हैं फीस 5 दिन का कितने, 7 दिन का फीस कितनी होती है? हाँ फीस तो है 10,000 नहीं, तो मेरा सिर्फ ये पूछना था कि जो ये बताते ये क्या तंत्र विद्या है क्या उनके? देखो 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 देखो, मंत्र तो समझते हो? हाँ मंत्र समझना है। मंत्र समझते हो ना जी। गायत्री मंत्र है, नवकार मंत्र है, ओम नमः शिवाय मंत्र है, ये तो मंत्र हुए ना जी। और ये मंत्र का जप करना है, इसकी एक प्रक्रिया हो गई। हाँ। चक्र की बात तो 7 चक्र की बात हो गई अभी। हाँ, अधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विज्ञान, सभी चक्र हो गए। ये एक स्थान है, सेंटर्स हैं। चक्र जो सेंटर्स हैं हमारे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, मैं मेडिकली बोल सकता हूँ कि वहां पर 12 चक्र हैं। यहाँ पे केवल उन्होंने 7 चक्र की बात कही है। एक्चुअली मेडिकली स्पाइनल कॉर्ड में जहाँ पर एफरेंट इफरेंट मिलती हैं और वहां पर सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक मिलती हैं, ऐसे ऐसे गैंग्लियन बने हैं जी। ये गैंग्लियन, सिलियरी गैंग्लियन, गैस्ट्रिक गैंग्लियन, ये गैंग्लियन बने हुए हैं। एक्चुअली इनको हम चक्र बोलते हैं। इसको साइंस, मेडिकल साइंस जो है वो, उनको आप लोगों ने यानी वेदांत ने या तंत्र शास्त्र ने उसको चक्र बता दिया। जी। लेकिन ये इस प्रकार की ऐसी स्थान है कि जहाँ पर हमारी फिजिकल एक्टिविटी और हमारी साइकिक एक्टिविटी दोनों मिलती हैं। यानी खाना जब खाते हैं तो क्या हुआ कि वहां पे जो चक्र है उससे एसिड पैदा होने लग गया जी। उसमें नर्व से उसने सिक्रेट किया, तो हमारा पेट के में जो चक्र है, तीसरा नंबर का चक्र है, वो एक्टिव हो गया। जब हम ऊपर आते हैं,
अगर गहरा ध्यान होवे, सांस में तकलीफ होवे, तो ऊपर वाला चक्र एक्टिव हो जाएगा। यस, ये भी मेडिकल साइंस बिल्कुल ठीक मानता है। तो वेदांत, ये शास्त्र कहते हैं, ये तंत्र शास्त्र कहता है कि इनको हम अभ्यास के द्वारा, प्रैक्टिस के, साधना की प्रैक्टिस के द्वारा, योग के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा इनको कंट्रोल किया जा सकता है। यानी जो आदमी यानी खाने का जो है उसको कंट्रोल कर सकता है, पता है ना, योगी लोग हैं बहुत सारे करते हैं ये सब प्रॉब्लम, है ना, बहुत सारी प्रॉब्लम करते हैं। वो अपने पेट का जो चक्र है उसको कंट्रोल कर लेंगे, वो एसिड सिक्रेशन अपने बल में लाएंगे जो हमारे हाथ में नहीं है, वो अपने मन से करते हैं। हार्ट को बीट को बंद कर देंगे, है ना। तो फिर ये सब जो है, ये इसको बोलते हैं तंत्र शास्त्र, तांत्रिक क्रिया। ये एक तंत्र शास्त्र अलग से है, विद्या है। इस विद्या में ये सारी चीजें हैं, किस प्रकार से करना। तो तंत्र शास्त्र अलग है, मंत्र अलग है और चक्र अलग है। अब समझ में आ गया है सब चीज? जी, समझ में आ गया। अब महाराज एक चीज पूछना है कि जब ये चक्र को जो मेडिकल भाषा में जो कहा जाता है, तो उसको दवाई के द्वारा या इंजेक्शन के द्वारा अवेकन नहीं किया जा सकता है? उसको आप एक्टिव नहीं कर सकते, उसको मार सकते हैं। क्या सर, फिर से बता दें क्या क्या? उसको यानी हम सुन कर देवे, हमने स्पाइनल कॉर्ड में इंजेक्शन लगा दिया, नीचे के पैर सुन्न हो गए। अच्छा, जो एनेस्थेसिया के लिए करते हैं, दैट दे कैन एनेस्थेसिया वगैरह में इस प्रकार का किया जा सकता है। ओके, बट दे कैन नॉट अपलिफ्ट इट फॉर अवर, नहीं अपलिफ्ट नहीं कर सकते, मेडिटेशन के लिए नहीं कर सकती है। नहीं, वो उनमें बहुत उल्टा पुल्टा हो जाएगा। ओके जी महाराज जी। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर हिडन पार्ट्स एंड प्रोसेस? सुनो, अब अगली बार मैं पूछने वाला हूँ तंत्र मंत्र तंत्र तुमसे। अच्छा बोलो सेकंड। What are hidden parts and processes in our physical body which we do not see? ये एक हार्ट है हमारा, पार्ट है कि नहीं हमारे हार्ट का, हृदय का, हृदय हमारा पार्ट है ना शरीर का। हाँ हाँ, उसका आप एक्टिविटी देख सकते हो क्या? नहीं। एक्टिविटी देख सकते हो ना, उसको देख सकते हो ना, एक्टिविटी उसको देख भी नहीं सकते और उसकी एक्टिविटी भी नहीं देख सकते हो। किडनी को नहीं देख सकते, लेकिन किडनी सब काम कर रही है। खाना पच रहा है स्टमक में, इंटेस्टाइन में, अरे ये सब का सब तो है, इतने सारे तो पार्ट्स हैं जिसको ना हम देख सकते हैं ना उसकी एक्टिविटी जान सकते हैं। वो एक्टिव है फिर भी। हमारा कैसा क्वेश्चन? नहीं बराबर। अब इसके आगे का सेंटेंस ये है जो डिस्कस हो चुका है, पर एक बार फिर से मैं पूछ रहा हूँ। ये सेंटेंस है, our teachers tells us that just as our physical body has hidden parts and processes which we do not see, of whose functions we may not be aware, so there are unconscious and superconscious layers of our mind. Many of our deep-rooted desires and passions lie in the unconsciousness. Those must be discovered and uprooted. ये पूरा कंटिन्यूएशन में पैराग्राफ है जो आप उनका ये कहना है कि केवल हमारे शरीर के अंग नहीं, मन के भी ऐसे बहुत सारे अंग हैं जिनको हम नहीं जानते। हमने हमारी वासनाएं भरी पड़ी हैं, हमारी अहंकार की इच्छा भरी पड़ी है। हम काम इस प्रकार से करते हैं जिससे लोग हमको प्रशंसा करें, हम खुद समझते नहीं इस चीज को। राइट। तो इस प्रकार की बहुत सारी वासनाएं, इच्छाएं साइकोलॉजिकली पड़ी हुई हैं जिनको हम नहीं जानते, ये कहना चाहते। बराबर महाराज के द्वारा इसलिए कहते हैं कि भाई बात हो गई ना, काम क्रोध लोभ मोह भैया कंट्रोल करो, वो है हमारे भीतर जी। कितना है हम नहीं जानते, धीरे धीरे निकलेंगे। Like heart and kidney, these all are also hidden in our heart. हाँ, इतने इच्छाएं वासनाएं जो है वो हमारे मन में भरी हुई हैं, हम जानते ही नहीं उनके बारे में। राइट महाराज जी। थर्ड क्वेश्चन तो हो गया था। नाउ फोर्थ इज व्हाट आर योगिक डिसिप्लिन्स? पेज 5। योग यम नियम अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। पतंजलि आगे महर्षि पतंजलि जी महाराज। उसके बाद प्राणायाम हुआ, उसके बाद आसन हुआ, प्रत्याहार हुआ,
हाँ योग में है, पतंजलि योग सूत्र के सारे डिसिप्लिन है, राइट, बराबर। अच्छा, अब महाराज जी ये एक पेज नंबर 534 पर है, डोंट प्ले विद द सर्पेंट। हाँ, ये जो पूरा पैराग्राफ है, दैट हैज क्रिएटेड सम डर। तो डर गए, या तो मैं ये पैराग्राफ पढ़ूं या बिना पढ़े सवाल है। देखो, ये सरपंच पावर कुंडलिनी शक्ति है ना। हाँ, कुंडली नहीं, कुंडली यानी जो कुंडल मान के बैठी है, यानी जी। सांप जैसे कुंडली मार के बैठता है ना, वैसा ये कुंडलिनी शक्ति जो है हमारे भीतर मूलाधार में बैठी हुई है। हाँ, इसकी सारे लेक्चर में, इसमें एक आर्टिकल में दिया है ना, कुंडलिनी शक्ति, कुंडलिनी। जी जी तो जी। कुंडलिनी जो है हमारे जीवन में एक महान शक्ति है। हाँ, वो शांत बैठी हुई है और हम अपना संसार का काम कर रहे हैं। हमने जी। कहा नहीं, उसको जगाएंगे। हाँ, और जगाने के लिए हमने ध्यान साधना चालू कर दी। अब मन तो हमारा पवित्र हुआ नहीं, वो शक्ति उठ गई। हाँ, और उठ के आ गई हमारा मन के ऊपर, उसने आघात किया, एक्टिव किया, और उसके बाद में हम गंदे काम करने लग गए, बराबर। बुरा करने लग गए। हमारी इतनी शक्ति आ गई, और ये शक्ति से परिणाम क्या हुआ? दूसरों का कल्याण, हमारा कल्याण। हमारी काम की इच्छा बढ़ गई, हमारा क्रोध बढ़ गया, क्योंकि पहले तो क्रोध पावर नहीं था, अब पावर आ गया। यस, इसलिए कहते हैं ये शक्ति को सरपंच इसलिए बोला कि ये सांप जैसी बैठी रहती, बराबर। और अगर सांप बाहर आ गया, उसको कंट्रोल नहीं किया तो नुकसान कर देगा। यही बात। ये जो शक्ति हमारे भीतर है, कुंडली शक्ति, हाँ, रावण इज एन एग्जाम्पल महाराज। रावण को देखो, इतनी भयंकर शक्ति। और ठाकुर के शिष्य थे ना, ठाकुर के मित्र थे, गुरु भाई थे जी, उन्होंने भी है चंद्र और गिरिजा, चंद्र और गिरिजा, उनमें भी शक्ति आ गई थी। तो वो फिर पीठ क्या में क्या लाइट सब दिखाते अदृश्य हो जाता था, और फिर उसके एक और लड़की के पीछे लग गया, ऐसा समय सा। तो बाबा, मन को शुद्ध किए बिना ये सब करने की जरूरत नहीं है। करने की बात नहीं। अच्छा, महाराज मैं ये सेंटेंस पढ़ रहा हूँ, आई कैन हैव फिजिकल कंट्रोल बट नॉट मेंटल कंट्रोल। इन दैट केस व्हाट शुड आई डू? शुड आई कंटिन्यू और स्टॉप इन द लाइट ऑफ द आर्टिकल दिस सर्पेंट? ये जो कुंडलिनी शक्ति जागरण करने की कोशिश करते हैं 4th स्टेज तक। अब मेरा सवाल इसके अंदर कंटिन्यूएशन में मैं एक ले लेता हूँ कि कुंडलिनी शक्ति जागरण करने के लिए 7 स्टेज है, नीचे से ऊपर तक जाना है। तो पहले 3 स्टेज तो हमारा सांसारिक है, और 4th से हमारा को फायदा होता है। तो क्या वी कैन जंप स्ट्रेट टू द 4th और वी हैव टू गो क्रोनोलॉजिकली? नहीं, धीरे धीरे जाना पड़ेगा, अचानक थोड़ी चले जाओगे। तो महाराज, तो ये तो तकलीफ में हमको डाल देगी पहली 3 स्टेज तो कुंडलिनी जागरण वहां हो गई, ऑलरेडी है अब हम लोग। तो आज तकलीफ में तो हो ही, तो क्या करना ऑलरेडी है अपने पास, अभी वही तो है कुंडलिनी। यानी 3 कुंडलिनी तो वो शक्ति हर व्यक्ति में है ही सांसारिक। कुंडलिनी मजे से है, मजे से खाना पीना कर रही है, तुम्हारा काम सेक्स वगैरह सब कुंडलिनी कर रही है, शांति मजे में है, वो तुम भी मजे में हो। अगर कुंडलिनी को जागृत करना है, उसको सारा कंट्रोल करना पड़ेगा। अरे काम क्रोध लोभ को कंट्रोल करना पड़ेगा, तब वो ऊपर जाएगी। और फिर ऊपर रहेगी कि नहीं रहेगी, फिर नीचे आएगी, बड़ा समस्या। अप्स एंड डाउन्स वाला बात है जी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इंट्रोवर्ट्स एंड एक्सट्रोवर्ट्स पर्सन्स डैमेज डिफरेंटली, व्हाट डैमेजेस एंड इंट्रोवर्ट पर्सन्स डू? एक्सट्रोवर्ट का तो समझ में आता है, इंट्रोवर्ट पर्सन क्या डैमेज कर सकते हैं? वो चुपचाप खुद नहीं, अपने आप बैठे रहते हैं, चुपचाप कुछ नहीं करते रहते हैं, दिमाग खराब हो जाता है। जी, वो मन ही मन चुपचाप बैठे हुए, किसी से मिलते जुलते नहीं है, पागल हो जाते हैं। वो जो इंट्रोवर्ट होते हैं ना, वो अपने विचारों में खोए रहते हैं। वो ध्यान जैसी चीज नहीं। हमारे यहाँ ध्यान साधना में भी ये कहा जाता है कि पहले कर्म करो, सेवा करो। रामकृष्ण मिशन जब सेवाश्रम शुरू किया तो ध्यान तो करना है, लेकिन सेवा करना पड़ेगा। जी जी।
ब्रह्मानंद जी ने कहा कि एक जब चुपचाप बैठे रहोगे 1 घंटे, कोई 8 घंटा 7 घंटा 8 घंटा मंदिर में जाके बैठा रहता है, देख लेते हैं कुछ गड़बड़ है। बहुत कम बिरले लोग हैं जो इस प्रकार कर सकते हैं। तो बैठे हुए हैं, वो बैठे बैठे घंटे भर बैठे हुए हैं, आधा टाइम नींद में निकल जाता है या इधर उधर मन घूमता रहता है, लोगों से मिलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, पागल ही हो जाते हैं। तो हमारे रामकृष्ण मिशन में भी पागल हुए हैं, चिंता मत करना, जब ज्यादा करने का कोशिश करने पे ये हो जाते हैं। तो ये इंट्रोस्पेक्शन के कारण हो जाता है। हाँ, बराबर महाराज जी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, this subheading of don't play with the serpent makes to think twice. Should we go to the Kundalini awakening? If we do not attend discipline, then disaster. नहीं महाराज, ये तो हो गया। अच्छा, 8वां तो कंटिन्यूएशन में कर लिया, हॉरिजॉन्टल बता दिया। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, व्हाट इज ब्लैक वाटर्स? ये ब्लैक वाटर, काला पानी काला पानी ये काला पानी जो लग आया ना, पहले जमाने में, अंग्रेजों के जमाने में, कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल होता था या पावरफुल आदमी होता था, तो उसको काले पानी भेज देते थे। यानी अंडमान निकोबार द्वीप जो है ना, वहां पे उनको जेल में डाल देना, उनको छोड़ देते थे। वहां से आ नहीं सकेगा, जहाज नहीं है, कुछ भी नहीं है। इंडिया में रहेगा तो जेल से भाग जाएगा, वहां से भागेगा भी तो कहाँ से जाएगा। तो इसमें काला पानी में एक बार आदमी गया तो फिर वापस नहीं लौटता। अच्छा महाराज, इससे एक फायदा ये भी हो सकता है कि यू कैन हैव अ वेरी गुड मेडिटेशन। जहाँ पर आप ऐसी स्थिति में हो कि वहां से वापस लौटने का मौका नहीं मिले, समाधि में आप ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हो कि उसके बाद वापस लौट के नहीं आते जी। इसलिए समाधि को कहते हैं काला पानी। अच्छा, समाधि को काला पानी कहते हैं। पढ़ो ना उसको। जी जी, दैट इज जी महाराज। अब महाराज जी, दैट इज कंप्लीट जी। पढ़ो। हाँ, बोलो निवेदिता, क्या बोल रही थी? कुछ बोल रही? नो, आपने पढ़ने के लिए कहा वो काला पानी की जगह को। पेज 539। बहुत इंटरेस्टिंग हो गया ना? हाँ, वही है ना, समाधि पे जाने के बाद आदमी वापस नहीं लौटता जी, यही है, वही ब्लैक वाटर। लेकिन ये उदाहरण बड़ा विचित्र है। वो तो जहाँ था रहा, दंड देते हैं काला पानी जाग के, यहाँ समाधि में काला दंड नहीं मिलता है, लेकिन वापस संसार में नहीं आता। महाराज, इसमें एक चीज और बोलिए कि जो बॉडी है वो 21 डेज तक ही रहती है। हाँ हाँ, वही तो ईश्वर कोटि फिर से आते हैं वापस। बॉडी भी छूट जाती है, मन तो समाप्त हो ही जाता है। सिर्फ ईश्वर कोटि वापस आ सकते हैं, वापस आ सकते। अच्छा, हो गया। सतीश वेग। हाँ महाराज। हाँ भाई। महाराज, first question, page 530. In the vast majority of spiritual aspirants, spiritual progress is a gradual process. My question is, does the process include fall and rise of man, and whether it takes place in cycles? कि जो प्रोसेस होती है स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, क्या ये स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है जहाँ पर साइकिल्स भी होती है, आदमी ऊपर भी जाता है और नीचे भी गिरता है, ये ऐसा होता है? नहीं, देखो, साइकिल में नहीं होती, लेकिन ऊपर नीचे होती रहती है। जैसे आप अगर हिमालय में चढ़ोगे तो पैदल चढ़ते जाओ, कहीं ऊंचे गए, बहुत ऊंचे चले गए, 2000 फीट पे चले गए, उसके बाद थोड़ा उतार आया, 100 फीट का उतार आया, फिर ऊपर चढ़े, 200 फीट उतर गए, चढ़ गए, फिर 50 फीट का उतार आया। तो ये अलग अलग लेवल पे उतार चढ़ाव हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल हमेशा जमीन पे ही आ जाओगे, समझे कि नहीं? गोल गोल घूमते रहते हैं, ये ऐसा नहीं है महाराज? नहीं, गोल गोल घूमना नहीं होता। गोल गोल घूमना यानी कुछ गड़बड़ है। जी जी, हमारी एक वासना है, बार बार उनको चक्कर दिला रही है, ऐसा नहीं है। ठीक अगर व्यक्ति साधना करे तो वो ऊपर चढ़ता जाता है, और ऊपर चढ़ते हुए कभी रुकेगा, कभी थोड़ा सा नीचे आ गया,
लेकिन उसका लेवल हमेशा ऊंचा नीचे नहीं जाता, बिल्कुल नीचे कभी नहीं जाता। जी महाराज। मैंने जैसे कहा ना, 5000 फीट तक अगर पहुंच गए हो तो आगे जो है वो थोड़ा नीचे आओगे, 4500 तक आ जाओगे, फिर ऊपर चढ़ोगे तो 5500 तक चले जाओगे। ये इस प्रकार के उतार चढ़ाव आध्यात्मिक जीवन में अवश्य आते रहते हैं। अभी हम लगे हुए हैं तो हम अगर हमारा नीचे मन गया तो हम क्या काम में ऐसे फंस तो नहीं जाएंगे? मैंने थोड़े विचार आ गए, बस वो चला गया। जी जी हमारे क्रोध की जगह थोड़ा सा चिड़चिड़ापन आ गया, कुछ ज्यादा गुस्सा नहीं आया। लोभ में क्या हुआ? लोभ में एक रोटी ज्यादा खा ली, एक मिठाई ज्यादा खा ली। जी लेकिन वो पूरा हमेशा ही लोभ बना रहेगा, ऐसी बात तो नहीं होती। जी जैसे ठाकुर कहते थे कि किसी का पतन हो गया, पतन हो जाता है, जैसे वो अलग बात है। नहीं, उसके बावजूद भी है ना, उनका पतन और सामान्य लोगों के पतन में भी बहुत अंतर है। जी 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 महाराज, जी महाराज। साधक का पतन हुआ, थोड़ा सा पतन हो जाएगा, फिर उठेगा वो। जी महाराज। हमेशा के लिए बर्बाद नहीं होता, वो हमेशा के लिए बर्बाद नहीं होता। बेचारा खुद अफसोस करता है, उसके बाद उठता है, फिर लगता है। जी महाराज, विद्या के संस्कार रहते हैं उसके। जी महाराज, जी महाराज। महाराज, बहुत सारे लोग हैं, देन there are large masses of people who are not spiritual aspirant at all. There are large masses of people who are not spiritual aspirant at all. उनकी गति क्या होती है? Would they ever meet God? Would ever realize God? नहीं तो उनको, तुमको क्या चिंता करने, उसके रियलाइज गॉड तो भगवान को मानते ही नहीं है। जी, भगवान होंगे तो होंगे, लेकिन रियलाइजेशन की बात तो वो कोई सोचती नहीं है। ये भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमको रोटी दे दो, हमारे बच्चे को तुम स्कूल में भर्ती कर दो, हमको जॉब दिला दो, यही भगवान का काम है बस। तो तुम उनकी क्यों चिंता करते? जी महाराज, they are not worried at all about God realization. जी महाराज, जी। वो भगवान जो है, उनको थोड़ा सा हमारी बीमारी खराब हो गई है तो प्रार्थना करती है भगवान के वहां पे, थोड़ा सा भोग चढ़ा दिया और भगवान हमको ठीक कर देंगे, यही उनका भगवान है। तो उनको संसार से इंटरेस्ट है। Why are you not worried about it? They are nothing worried about God. महाराज, उनके लाइफ में कभी परफेक्शन नहीं आती, जैसे एवोल्यूशन है। अरे बाबा, उनको चाहिए ही क्या परफेक्शन? तुम क्यों इतना चिंता करते हो? What do you mean by perfection? वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा हो गया, अपने जॉब पे बैठ जावे और हमारे को अच्छा बिजनेस, हमारा बैंक अकाउंट ठीक होता है। That is their perfection. Why are you worried about it? That is not at all their ideal. तुम बोलोगे भी तो तुमको डांट के बता देंगे, क्या बोल रहे हो तुम, परफेक्शन, मैं मजे में हूं। Why are you worried about that? नेक्स्ट क्वेश्चन। महाराज मुझे इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि जब इंसान को स्पिरिचुअल अवेकनिंग होता है फर्स्ट टाइम, जैसे आर्टिकल में कहा गया है 531 पेज में, ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्या होता है? Is it the devotees where he starts asking himself, who am I, what is my goal, and finally finds a higher goal and turns it for the first time? जो पहली उसकी एक बदलाव आता है जिंदगी में, जब वो ठाकुर की ओर मुड़ता है, उसके बारे में सोचता है, अपने बारे में सोचता है, वो कहाँ पे सोचता है, यही स्पिरिचुअल अवेकनिंग है ना, और इसी को पहला स्पिरिचुअल अवेकनिंग माना जाएगा ना। क्लियरली लिखा है आर्टिकल में क्लियरली लिखा हुआ है ना। हाँ जी, तभी कह रहा हूँ। तो जब इंसान पहली बार ये सोचता है, पहले वो 3 लेवल पे चल रहा था, अचानक पहले वो 3 लेवल पे चल रहा था, अब अचानक उसको लगता है कि उसकी जिंदगी में कुछ और चाहिए, जो मिसिंग है, वही स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुआ ना। 99% लोग ये 3 लेवल पे हमेशा रहते हैं। जी जी जी। हाँ, 99.9% लोग। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धिये। हजारों मनुष्य में कोई एक है जो भगवान की चाहता है। तो स्वामी भगवान गीता में भी कहते हैं। जी महाराज, तो तुम उनके लिए क्यों चिंता करते हो? वो कभी नहीं सोचेंगे। लाखों लोगों में एक बार एक। चलो जी महाराज, नेक्स्ट क्वेश्चन महाराज, पेज 545। Man's attraction for a particular aspect of the divine depends upon his mental makeup.
Maharaj, does it mean depending upon his samskaras or his intellectual quotient? दोनों हैं, बोथ दोनों ऑफ देम। तुम्हारा बड़ा अच्छा ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्या है कि हमारे संस्कार तो वैष्णव संस्कार थे या शिव संस्कार थे, हम ठाकुर के पास कैसे आ गए? कैसे आ गए? जी महाराज, समझे ना? जी जी तो ठाकुर के पूरे संस्कार तो होते हैं, लेकिन इंटेलेक्चुअल पार्ट भी काम करता है। जी जी। एक बेसिक स्ट्रेन है, हम भगवान शिव को क्यों प्राप्त करते हैं, विष्णु को क्यों चाहते हैं? क्योंकि हम भगवान को चाहते हैं, हम एक स्पिरिचुअल एस्पिरेशन हमारे जीवन में है। लेकिन अब हमने देखा कि ठाकुर में तो ज्यादा है, तो इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी भी चालू हो जाती है डेफिनेटली। यानी मेनली संस्कार है, लेकिन इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत आवश्यक। बहुत से लोग, अधिकांश लोगों को इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग, अब वेस्टर्न लोग हैं तो वो क्रिश्चियन है, लेकिन सारे पता नहीं कितने लोग हिंदू बनते चले जा रहे हैं, है ना? और ये परमहंस योगानंद है या जो भी है, आनंदमयी माँ, कितने लोग जो है उनको तरफ जा रहे हैं। वो लोग उनके जो क्रिश्चियन इम्प्रेशन होते हुए भी हिंदू आइडियाज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये इंटेलेक्चुअल पार्ट डेफिनेटली, जमाना बदल रहा है तो ये सब चीजें होती। जी महाराज जी, एस्पेक्ट ऑफ द डिवाइन मैं समझना चाहता हूँ, ये क्या होता है एस्पेक्ट ऑफ द डिवाइन? एस्पेक्ट यानी परमात्मा का रूप, विभिन्न प्रकार के रूप। राम, कृष्ण, शिव, दुर्गा, ये क्या है? दीज आर द एस्पेक्ट्स ऑफ द डिवाइन। ठीक महाराज। नेक्स्ट क्वेश्चन महाराज 548, Swami Vivekananda's hymen on Samadhi. Maharaj, although I have not fully understood the hymen, what I have however understood is that even the I consciousness merges in the divine consciousness and there is no I left. This is the stage of Nirvikalpa Samadhi. My question is, in case there is no I and mind left as they had merged into the divine consciousness, then who is it that is reciting the hymen and relating the hymen? Him. Hymen nahi hai, wo him, H-I-M-N, him. Then who is it that is reciting? Not hymen, him. My question is, in case there is no I and mind left as they have merged in the divine consciousness, then who is it that is reciting the hymen? अच्छा देखो, narrating the mind beyond mind experience. वो तुम्हारा क्वेश्चन समझ गया जी महाराज। ये तो उस आर्टिकल में भी लिखा है ना जी महाराज कि समाधि के बाद में 21 दिन में शरीर चला जाता है, लिखा है कि नहीं? यस, है ना? जी महाराज लिखा है। नॉर्मली निर्विकल्प समाधि के बाद में व्यक्ति वापस नहीं लौटता, मर जाता है। यानी मन विलीन हो जाता है, अहंकार विलीन हो जाता है। तुम्हारा क्वेश्चन वहां नहीं जमेगा। हु विल रिटर्न? ही डज नॉट रिटर्न। बिरले, एक आध दुर्बल, विवेकानंद, रामकृष्ण जैसे एक आध लोग ही हैं जो वापस आते हैं। और वापस आते हैं क्यों? जगत कल्याण के लिए आते हैं वापस। तो उनमें थोड़ा सा अहंकार बच जाता है, विशुद्ध अहंकार हो जाता है, थोड़ा सा अहंकार और मन बच जाता है, जिसके माध्यम से वो जगत के कल्याण के लिए बोलते। बट 90% लोग जो निर्विकल्प समाधि होती है तो फिर वापस नहीं लौटते, वो लीन हो जाते हैं, परमात्मा में लीन हो जाते हैं। वो परमात्मा में लीन हो जाते हैं। हाँ जी। नेक्स्ट महाराज, नेक्स्ट पैरा स्वामी says, take the science of chemistry for instance. Chemists are seeking to dissolve all known substances into the original elements and if possible to find the one element from which all these are derived. Then the science of chemistry will become perfect. My question is, Maharaj, is it the God particle the scientists are experimenting to find? उस God particle की बात हो रही थी ना, क्या यही बात कर रहे हैं जो ओरिजिनल एलिमेंट की बात कर रहे हैं? और will they be able to find it? नहीं, वो तो क्या, वो तो वैज्ञानिक जो है वो गॉड एंड पार्टिकल थोड़ी बातें हैं। आइंस्टाइन को ले, हाँ जी, तो उसने रिसर्च किया, इज इक्वल टू mc स्क्वायर किया ना, एटम को प्राप्त कर लिया। हाँ जी, हाँ जी।
वो एटम में एनर्जी है, उसने पता लगा लिया। कोई ने एटम को मालूम किया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को इन्वेस्ट किया, वहां तक पहुंचे बस। नहीं, अब वो आगे भी सर्च चल रही महाराज। वो कह रहे हैं कि गॉड पार्टिकल को हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि दे विल फाइंड द गॉड पार्टिकल, जहां से एटम्स की भी शुरू होते। पाने दो ना, निकालने तो दो गॉड पार्टिकल को। नहीं, वो एक्सपेरिमेंट हुआ है महाराज, एक्सपेरिमेंट हुआ है, बड़े लेवल पर हुआ है, बहुत हाई लेवल, बहुत बड़े नहीं लेवल तो बताना तुमको कहा गॉड पार्टिकल क्या होता है, उसका उसके कैरेक्टर क्या है, ये तो पता चले। दे हैव नॉट बीन एबल टू फाइंड इट, दे हैव फेल्ड इन एक्सपेरिमेंट। यही तो बोल रहा हूँ, गॉड पार्टिकल ऐसे नहीं मिलता भाई। इट इज इन द स्पिरिचुअल realm, इट कैन नॉट बी फाउंड इन द मटेरियल realm। अब मेंटल लेवल पे गॉड पार्टिकल मिलेगा, फिजिकल लेवल पे गॉड पार्टिकल नहीं मिलेगा बाबा। और आइंस्टाइन ने भी यही तो कहा था, ई से एमसी स्क्वायर के बाद में वो भगवान की बात करने लग गया था कि भाई ये तो कुछ नहीं है, उसके पीछे भगवान है। जी महाराज। तो अगर साइंटिस्ट ठीक साइंटिस्ट होगा तो वो भगवान के पास आएगा ही आएगा। वो कहेगा कि मेरा साइंस जो है, फिजिकल साइंस, एक स्तर पर जाकर फेल हो जाए। That experiment has failed also, my lord, Maharaj. That experiment has also failed. That experiment was conducted at a large scale. It has failed. It has failed. कहाँ पे? That experiments were conducted in a large scale to find the God particle, and it has failed. Failed ना? हाँ, होना ही था। तो फिर वो तो फिजिकल लेवल पे तो गॉड पार्टिकल निकल नहीं सकता भाई। फिर तो महाराज ये जी महाराज और नहीं महाराज, फिजिकल लेवल पे यदि गॉड पार्टिकल मिल गया तो फिर लोग खरीद लेंगे। ठीक बात है। तो यही तो करते हैं आजकल, यही तो आजकल करते हैं ना। वो आजकल योगा में है ना, 1000 रुपीज फॉर गॉड रियलाइजेशन। तुम यही तो अभी तो बता रहे थे, कहते हैं ना कि 7 दिन में कुंडलिनी जागरण हो जाता है, का दर्शन 7 दिन में भगवान का दर्शन करा देंगे। तो सब चल रहा है, तो ये तो चलता ही रहता है। महाराज जी कोई सवाल नहीं है, एक ये पूछ रहा हूँ, निर्विकल्प समाधि और संथारा में क्या फर्क रहेगा? समाधि और संथारा जो जैन लोग लेते हैं आखिरी में। नहीं, संथारा तो जो मरने के लिए है। वो तो क्या है कि समाधि मरण नाम दे दिया है, लेकिन धीरे धीरे खाना बंद करके मर जाना, बस। संथारा का तो समाधि में भी तो यही स्थिति आएगी? नहीं, समाधि में थोड़ी, समाधि में तो चित्त विलीन होता है, उनका मन तो चंचल रहता है ना। समाधि मरण में भी मन तो चंचल रहता है। अच्छा, और ये जो जैन मुनि लोग जो संथारा लेते हैं, तो वो काय के लिए लेते हैं? दे ऑल्सो टेक इट नॉट फॉर डेथ बट फॉर रीचिंग टू द हायर स्पिरिट। नहीं, वो जैन मुनि लेवे या जैन गृहस्थ लेवे, उनका ये कहना है कि भाई शरीर अब पूरा हो गया है, इसको बचाने के लिए इतनी मेहनत क्यों करें, इसको धीरे धीरे नष्ट हो जाने दें, बस। दैट इज द आइडिया। ओके, जी बिल्कुल ठीक बात आइडिया है कि भाई पड़े हैं आप ये आईसीयू में पड़े हुए हैं, और 1000-5000 रुपया रोज महीने में होता है, और कितने दिन बचे, 5 दिन 10 दिन 12 दिन बचे हुए हैं, और 50,000 1 लाख रुपया खर्चा हुआ, ये क्या? उसके बदले खाना पीना छोड़ दो बाबा, जल्दी से खत्म हो जाए। ठीक है जी महाराज, और कुछ नहीं, बस छोड़ दिया इतने जल्दी। अब निर्विकल्प समाधि में जाएंगे या जैनों के समाधि? महाराज ये सवाल नहीं समझ में आया, नेक्स्ट टाइम आई विल आस्क। ये समझ के बाहर गया कि ये जैन मुनि लोग भी मरने के लिए थोड़ी जाते, वो भी तो समाधि लेते हैं। नहीं, नाम बता दिया है समाधि। हम भी किसी भी चीज को समाधि बोल सकते हैं ना। हाँ, हम बोले हम क्या कर रहे हैं कि भाई हम लाटू महाराज के कमरे में जा रहे हैं, समाधि के लिए जा रहे हैं। हम बैठे ध्यान करेंगे, चुपचाप मिलना जुलना नहीं होगा, 1-2 घंटे ध्यान करेंगे, हमने नाम दे दिया समाधि। तो हम रात को भाई हम कमरे से बाहर नहीं निकलेंगे, हम समाधि में रहेंगे, मतलब क्या, हम सो रहे हैं, निद्रा समाधि। निद्रा समाधि।
तो समाधि के कई प्रकार के मीनिंग हो सकते हैं। पहले आपको अगर प्रश्न पूछेंगे तो मैं आपसे पूछूंगा कि आप समाधि से क्या समझते। तैयार हो जाना। तैयार हूँ मैं, बिल्कुल नेक्स्ट जी स्टडी कर दूंगा महाराज अब मैं 7 दिन। ठीक है। वहाँ पातंजल योग सूत्र में 7 प्रकार की समाधियां हैं, सावधान हो जाना। आपने हिंट दे दी पढ़ने की। ओम शांति 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 हरि ओम राम कृष्ण अर्पणमस्तु। हाँ भाई, नमस्ते नमस्ते सबको, नमस्ते।